Good afternoon to all of you. Today's topic is classification of materials. Okay, so our material is basically classified into three groups. First one is conductor, second one is insulator, and the third one is semiconductor. So in electronics engineering, the material used for electronics devices is basically semiconductor, that is silicon and germanium. Okay, these two semiconductor material are used for electronics devices. Okay, so we will focus semiconductors in whole syllabus or whole chapters in the electronics engineering. Okay, so now let's start with the first one, that is conductor. What is conductor? A conductor, an excellent form of conductor, are those material which are good conductor of electricity. It means कंडक्टर वो सब्सटेंस होता है, वो मटेरियल होता है जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है. इट मीन्स उससे करंट ईजिली फ्लो करे. इट मीन्स हम लोग इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि कंडक्टर आर दो सब्सटेंस विच अलाउ द इलेक्ट्रॉन्स टू फ्लो थ्रू इट ईजली. मीन्स ये ईजली इलेक्ट्रॉन्स को अलाउ देता है अपने थ्रू फ्लो होने का. तो ये इसको हम लोग बोलते हैं कंडक्टर्स. ओके, अगर एग्जाम्पल्स का बात करें, फॉर एग्जाम्पल्स वुड, almost all metal or human body are the examples of conductors. Okay, now come to the next one, that is insulator. What is insulator? So the insulator are those material which are bad conductor of electricity. What is conductor? Conductor are those material which are good conductor of electricity. Okay, and insulator are those substances which are bad conductor of electricity. Or others, we can also define insulator as which do not allow to flow of electrons through the material. Means it does not allow the electrons to flow through it. It means ये ऐसा मटेरियल होता है जो अलाउ नहीं करता है इलेक्ट्रॉन्स को अपने थ्रू पास होने के लिए. ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं रबर, प्लास्टिक, ग्लास एट्सेट्रा. तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ insulator. Okay, now come to the next one, or very important one, that is semiconductor. Okay, this is a very important. Okay, this is very important. So what is semiconductor? Semiconductor are those substance or material whose conductivity lies between conductor or insulator. इट मीन्स सेमी कंडक्टर वो मटेरियल होता है जिसकी कंडक्टिविटी लाइक करती है बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर. इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच में उसकी कंडक्टिविटी लाइज करती है. ठीक है, तो हम लोग इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, इन द अदर वर्ड्स, दोज सेमी कंडक्टर आर दोज सब्सटेंस विच पार्शियली अलाउ द फ्लो ऑफ चार्जेस. ओके, और पार्शियली अलाउ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन. इट मीन्स these are semiconductors those substance or material which partially allow the flow of electron. it means ये खुद से partially means allow भी कर सकता है, नहीं भी कर सकता है. ये totally मेरा डिपेंड करता है टेम्परेचर और एक्सटर्नल जो हम लोग सप्लाई प्रोवाइड करते हैं सेमीकंडक्टर्स पे. ठीक है, तो फॉर एग्जांपल जर्मेनियम एंड सिलिकॉन, दीज आर द टू मोस्ट very important substance which is used in semiconductors. Okay, now come to the next topic, that is types of semiconductor. So what are the types of semiconductor? So our semiconductor basically divided into two types. Okay, the first one is intrinsic semiconductor and the second one is extrinsic semiconductor. What is intrinsic semiconductor? The first one is intrinsic semiconductor. So what is intrinsic semiconductor? So intrinsic semiconductor is nothing, it is just a pure form of semiconductor. Okay, semiconductor in its pure form is termed as intrinsic semiconductor. और हम लोग बोल सकते हैं कि जो प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं मीन्स जिस पे कोई भी इम्प्योरिटीज़ ऐड ना हो, कोई इम्प्योरिटीज़ मिला हुआ ना, उस तरह के सेमीकंडक्टर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? Intrinsic semiconductor. So pure means no impurities are added to the semiconductor. Now come to the next one, extrinsic semiconductor. So what is extrinsic semiconductor?
If any impurities is added to pure form of semiconductor, then that is called extrinsic semiconductor. Okay. So what is the need of extrinsic semiconductor? If already we have intrinsic semiconductor, that is pure form of semiconductor, then what is the need of extrinsic semiconductor? So what happened in intrinsic semiconductor? These semiconductor have a small conductivity at room temperature. Okay, means इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का जो कंडक्टिविटी होता है वो बहुत ही स्मॉल होता है रूम टेम्परेचर में, जिसके चलते हम लोग क्या करते हैं, इस पर ये जब ज़्यादातर यूज़ नहीं होता है, तो अब उसको यूज़ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग को क्या करना है कि मतलब अच्छे से यूज़ हो, तो उस पर हम लोग एक इम्प्योरिटीज़ ऐड करते हैं। इम्प्योरिटीज़ ऐड करने से क्या होता है, उसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज़ कर जाती है। ठीक है, तो जो प्रोसेस होता है इम्प्योरिटीज़ ऐड करने का, इट मीन्स द प्रोसेस is used to add impurities in the pure semiconductor is called doping. ठीक है, मीन्स ये जो प्रोसेस है, द प्रोसेस is added to pure form of semiconductor, means if impurities is added to pure form of semiconductor, then this process is called doping. All of you note this, what is doping? And the process of adding the impurities to the pure semiconductor or intrinsic semiconductor is called doping. Okay, so intrinsic semiconductor are those in which impurities are added to the pure semiconductor. Okay, then that is called as extrinsic semiconductor. Now come to the next one, types of extrinsic semiconductor. So basically extrinsic semiconductor is divided into two parts. First one is p-type semiconductor and the second one is n-type semiconductor. So by adding some impurities, okay, by adding some impurities we can form p-type semiconductor and n-type semiconductor. Okay, now let's start with the first one, that is p-type semiconductor. Okay, these student these topics are very important, so please listen this carefully. Okay, so what is p-type semiconductor? In a p-type semiconductor, majority carriers are holes and minority carriers are electrons. So before going through this, first you know that there are two types of carrier. Holes means positive carriers, okay, electrons means negative carriers. Okay, so in p-type semiconductor, holes, majority carriers are holes, means होल्स कैरियर्स ज़्यादा होते हैं पी टाइप में और इलेक्ट्रॉन्स कैरियर्स जो होते हैं वो कम होते हैं. मेजॉरिटी मीन्स ज़्यादा, माइनॉरिटी मीन्स कम. सो इन पी टाइप सेमीकंडक्टर majority carriers are holes and minority carriers are electrons. Okay, so which impurities we are added to form p-type semiconductor? So if a trivalent impurities, what do you mean by trivalent? means जो हमारा periodic table होता है उसके जो थर्ड ग्रुप होते हैं उसके एलिमेंट एज ए हम लोग यूज़ करते हैं इम्प्योरिटीज़. अगर हम उसको प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल पे ऐड करेंगे इम्प्योरिटीज़ को, जो कि ट्राइवेलेंट क्या क्या होता है, मेरा बोरॉन होता है, एल्युमिनियम, इंडियम. सो दीज आर द trivalent impurities which we are added in the pure semiconductor to form p-type semiconductor. Okay, so if a trivalent impurities is added to a pure form of semiconductor, p-type semiconductor can be formed. Okay, now come to the it is a accepted type impurities, means जो मेरा trivalent impurities होते हैं वो क्या होता है, accepted types यूनिट होते हैं. So ये अगर हम लोग इसका स्ट्रक्चर की बात करें तो ये मेरा लैटिस स्ट्रक्चर है. दिस इज़ लैटिस स्ट्रक्चर, ओके, ऑफ सिलिकॉन. सो बेसिकली वी आर यूजिंग हियर सिलिकॉन. ओके, सो दिस इज़ द लैटिस स्ट्रक्चर ऑफ सिलिकॉन. द एटॉमिक नंबर ऑफ सिलिकॉन is 40. So in the outermost shell of silicon is 4 electrons. Okay, so these are the 4 electrons of outermost shell of silicon. So जो
सिलिकॉन के स्ट्रक्चर होते हैं वो क्या होते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड पे एक दूसरे से कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग इस पे इम्प्योरिटीज़ ऐड करेंगे तो मेरा थर्ड ग्रुप का इम्प्योरिटीज़ क्या था, बोरॉन, एल्युमिनियम एंड इंडियम, ठीक है। तो हम लोग क्या एग्जांपल लेंगे, एल्युमिनियम ऐड करेंगे, ठीक है। तब यहाँ पे एल्युमिनियम ऐड करेंगे, देखिए here we add aluminium, okay, aluminium have 3 valence electrons in the outermost shell, okay, so aluminium का outermost shell पे 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन्स सिलिकॉन के एक इलेक्ट्रॉन से कोवैलेंट बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। यहाँ फॉर्म किया कोवैलेंट बॉन्ड। अब यहाँ पे क्या होगा कि एल्युमिनियम का ये जो एल्युमिनियम के आउटरमोस्ट शेल पे 3 इलेक्ट्रॉन्स थे, वो सिलिकॉन के एक इलेक्ट्रॉन से वो कोवैलेंट बॉन्ड बना दिए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्या होगा, ये जो इस सिलिकॉन का जो मतलब इलेक्ट्रॉन्स था, ये क्या होगा, ये तो बॉन्ड नहीं बना पाया, इट मीन्स ये वैकेंट रह गया। तो ये वैकेंट क्या फॉर्म होता है, एक होल होता है। अब एक पी टाइप बनाने के लिए हम लोग जो एल्युमिनियम इम्प्योरिटीज़ होता है उसको बहुत सारा एल्युमिनियम इम्प्योरिटीज़ ऐड करते हैं, मीन्स एक एल्युमिनियम इम्प्योरिटीज़ एक होल प्रोड्यूस करेगा, तो सेवरल एल्युमिनियम क्या होगा, बहुत सारे होल्स प्रोड्यूस करेंगे। तब यहाँ पे नंबर ऑफ होल्स जो होंगे वो मेरा ग्रेटर हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स के कंपैरिजन में। तो जिसके चलते इस पर जो करंट मेरा फ्लो करेगा वो किसकी वजह से करेगा, होल्स की वजह से। तो अगर हम लोग प्योर का बात करें, मान लीजिए कि अगर हम कोई इम्प्योरिटीज़ ऐड नहीं किए, ठीक है, यहाँ पे देखिए कोई इम्प्योरिटीज़ ऐड नहीं किए, तो मेरा ये कोवैलेंट बॉन्ड बनाया है, इस पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ होल्स है, मीन्स नंबर ऑफ होल्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, मीन्स करंट दोनों की वजह से सेम होगा। मीन्स इस पर अगर करंट दोनों सेम होगा इट मीन्स करंट फ्लो नहीं करेगा, ठीक है। ये एक मतलब इस पर बहुत ज़्यादा कंडक्टिविटी नहीं होता, जिसके चलते हम लोग इम्प्योरिटीज़ ऐड करते हैं और इसको इंट्रिंसिक बनाते हैं, जिस पे अगर हम लोग थर्ड ग्रुप ऐड करेंगे तो वो पी टाइप बनेगा, फिफ्थ ग्रुप ऐड करेंगे तो वो एन टाइप बनेगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ से मेरा होल क्रिएट हो गया, यहाँ देखिए एक होल आया। अगर फिर से हम दूसरा एल्युमिनियम लाएंगे, मान लीजिए हम यहाँ पे दूसरा एल्युमिनियम लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे एक होल क्रिएट होगा, ठीक है। इस ईच एल्युमिनियम के साथ वन होल हमेशा क्रिएट होगा, जिसके चलते नंबर ऑफ होल्स क्या होते हैं, इंक्रीज कर जाते हैं एज कंपेरिजन टू इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरह से मेरा फॉर्म होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर, ओके। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, दैट इज एन टाइप सेमीकंडक्टर। So in n-type semiconductor, majority carriers are electrons. Okay, n means negative charge, p means positive charge. Okay, so in n-type semiconductor, negative charge जो होते हैं electrons, उसके वो ज़्यादा मात्रा में होता है as comparison to positive charge. Okay, so here majority charge carriers are electrons and minority charge carriers are holes. Okay, so when a pentavalent impurities such as phosphorus, antimony, arsenic are added to the pure form of semiconductor, n-type semiconductor are formed. It means देखिए पी टाइप में हम लोग क्या इम्प्योरिटीज़ ऐड किए थे, ट्राईवैलेंट, मीन्स जो पीरियोडिक टेबल के थर्ड ग्रुप में जो मेरा मटेरियल था, सब्सटेंस था, उसको हम लोग ऐड किया एज अ इम्प्योरिटीज़। और एन टाइप पे हम लोग फिफ्थ ग्रुप के मीन्स पीरियोडिक टेबल के फिफ्थ ग्रुप के सब्सटेंस को हम लोग ऐड करेंगे एज अ इम्प्योरिटीज़ टू फॉर्म अ एन टाइप सेमीकंडक्टर्स, ओके। नाउ here we add, let us examples that we add here impurities as a phosphorus, okay. So phosphorus have 5 electrons in the outermost shell, it means here 5 electrons are present. So phosphorus, देखिए यहाँ पे क्या सिंपली क्या हो रहा है, इसको सिंपली समझिए कि जो मेरा फॉस्फोरस का आउटर मोस्ट सेल पे 5 इलेक्ट्रॉन, मीन्स फॉस्फोरस का आउटर मोस्ट सेल पे 1 इलेक्ट्रॉन्स, देखिए फॉस्फोरस है, इसके आउटर मोस्ट सेल पे 1 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स, 3 4 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो सिलिकॉन के आउटर मोस्ट सेल पे तो 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो फॉस्फोरस के 4 इलेक्ट्रॉन्स तो कोवैलेंट बॉन्ड बना लेंगे सिलिकॉन के साथ, ठीक है। यहाँ देखिए ये जो फॉस्फोरस का 5 इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4 5, ओके। सो 5 जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कोवैलेंट बॉन्ड बना रहे हैं सिलिकॉन के साथ, ठीक है। 4
एक इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जा रहा है, फ्री बच जा रहा है, तो ये मेरा क्या हो गया, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गया। सो दिस इज़ अ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जिसके चलते क्या हो रहा है कि मान लीजिए कि हम एक फॉस्फोरस ऐड किए तो एक इलेक्ट्रॉन्स आया, तो अगर बहुत सारे फॉस्फोरस ऐड करेंगे एज ए इम्प्योरिटीज इन प्योर सेमीकंडक्टर, so what happen, so many electrons are present here, free electrons, okay, so then the number of electrons will become greater than the number of holes. क्या हो गया यहाँ पे, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स मेरा इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है, माइनॉरिटी में कौन है, होल्स हैं, ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल्स, सो देयरफॉर द current of electrons is greater than current of holes, means IE is greater than IH हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली लैटिस स्ट्रक्चर ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर, ओके। सो इट इज़ अ डोनर टाइप इम्प्योरिटीज, ठीक है, मीन्स दोनों में क्या है, जो पी टाइप होता है वो उस पर हम लोग जो इम्प्योरिटीज़ ऐड करते हैं वो एक्सेप्टर टाइप इम्प्योरिटीज़ होता है, ठीक है। होल्स मीन्स क्या होता है कि वो कुछ एक्सेप्ट कर सकता है, होल्स इज़ नथिंग बट इट इज़ अ बेसिकली वैकेंट स्पेस विच कैन अट्रैक्ट अ नेगेटिव चार्ज, ओके। सो होल्स जो थर्ड ग्रुप के एलिमेंट होते हैं वो हम लोग उसको क्या बोल सकते हैं, सिंपली कि वो एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज़ हो गए, और जो फिफ्थ ग्रुप के एलिमेंट होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं डोनर टाइप इम्प्योरिटीज़, ठीक है। ये फ्री इलेक्ट्रॉन से मीन्स ये किसी के पास जा सकता है, मीन्स डोनेट कर सकता है, ठीक है। सो आई होप all of you clear about this. From next in next video we will discuss about energy band, okay. So that is all for today. Thank you all of you.